Good morning, everyone. Good morning, sir. Hope you are fine and doing well. Before we start our today's content, let me do the Gayatri Mantra thrice and then we continue with our today's content. So join your hand, close your eyes and do Gayatri Mantra thrice. Om Bhuvasvaha Tattvaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimah धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. In my previous class, we had completed with chapter number 12, algebraic expression. With this, we had completed with our syllabus of PA1, in which we had 4 chapters, chapter number 1, 2, 4 and 12. So from today onwards, we'll revise the concept of PA1, which we had already completed from NCERT textbook. So as I said in my previous class, that for the next class you all need R.D. Sharma with you. So today we'll continue with revision of chapter number 2 from R.D. Sharma, fractions. We had the title of chapter that is fraction and decimal, but in R.D. Sharma this both chapters is given as one is chapter number 2, another one is I think chapter number 3. Okay. Ready everyone? Yes, sir. Good. Chalo. Let we first basically revise the basic concept of the fraction. What is fraction? In which we had learned about that fraction के अंदर numerator and denominator. Okay. We had learned the types of fraction. Okay. There are different kind of type of fraction. We had learned like proper fraction, improper fraction, like fraction, unlike fraction, mixed fraction, equivalent fraction, unit fraction. Okay. Then we had learned about comparing of the fractions, ordering of the fractions, and then 4 main basic operations. इस बार fraction में जो mainly आपका important topic था, वो था 4 arithmetic operation with the fractional number, that is addition, subtraction, multiplication and division. So, can anybody please let me know that the definition for the proper fraction? हम proper fraction कैसे कहेंगे? So these are the very important things we are going to discuss today. डिवीजन का हर एक पॉइंट ध्यान से देखना, एक बार ठीक से रिवाइज करना, क्योंकि हमें फिर से मौका मिला है. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर मेरी स्क्रीन छोटी हो गई, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. तो अच्छा है ना, मैं तो दिख रहा हूँ ना. फाइन, तुझे मुझे और बोर्ड कोई तो दिखना है. सर पर बॉडी नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ आपके पीछे वाला इतना ही दिख रहा है. Then you need to do the arrangement. Must make sure your mobile is in this way. Yes, sir. Okay. Good. Sure. The proper fraction means, yes, numerator value is less than the denominator value. Which we call the proper fraction. Some of you given example, even 1/2, even 3/4. These all are the example of proper fraction. हम improper fraction किसे कहेंगे? Improper fraction.
like numerator value is greater than the denominator value. इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जैसे 8/7. ठीक है. प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बाद we had learned about the like and unlike fraction. In the like fraction, denominator are similar. Unlike fraction, denominator are different. Unit fraction, numerator is 1. Mixed fraction is a combination of whole and proper fraction. Okay. Yes, Rusil. Yes, sir. In submission, sir, we have to submit the addition book also, na? No. You only have to submit as of now NCERT textbook. ठीक है. NCERT का जो कंटेंट है, that only you have to submit. Clear? Okay, sir. Good. Now see, after yes, please. सर आई हैव डाउट. Please. सर मैंने पिछले सबमिशन में बुक सबमिट नहीं की थी, तो मैं इस सबमिशन में सारी बुक सबमिट कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है. पूरा कंटेंट लिखा हुआ भेज देना. ठीक है बेटा. बट मेक श्योर आप रेगुलरली सबमिशन करें, इससे बहुत बेनिफिट होता है. नेक्स्ट सर मैं टाइम. कभी ओके बेटा, कोई इशू नहीं. ठीक है. इस बार का सबमिशन में भेज देना उसको. चल. In fraction, the first topic that we had learned about is comparing of the fraction. ठीक है. हाँ रुसिल, बताओ. और कोई डाउट से? सीधा एक्सरसाइज 2.1 हम आरडी शर्मा से कंटेंट भी देखते जाएंगे, कंसेप्ट भी देखते जाएंगे, और साथ साथ में हमारा रिवीजन भी होता रहेगा. ठीक है. इसमें पहला क्वेश्चन है. आई एम गोइंग टू डू 1 and 2 क्वेश्चन फ्रॉम दैम, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन द होमवर्क. ठीक है. ये आरडी शर्मा का पूरा कंटेंट करना तो मुश्किल है, तो इसमें से आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा. जितना पॉसिबल है उतना हम क्लास में सोल्व करेंगे, फिर आपके डाउट भी सोल्व करवा देंगे. ठीक है बेटा. जिसमें पहला ही क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ ग्रेटर और लेस और इक्वल. ठीक है. तो हम कंपैरिजन कैसे करते थे? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है 7/9 एंड 8/13. वैसे कंपैरिजन करने की दो मेथड्स होती थी. एक हम एलसीएम निकाल के कर सकते थे, एक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. बट जब कंपैरिजन ही है दो नंबर का, तो एलसीएम की जरूरत नहीं है. हम कैसे करेंगे? तो पहले इन नंबरों को लिख ले, देन उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे. 7 multiply 13, 13 7 जा 91. 8 multiply 9, 72. You will see the 91 is greater than 72. That means 7/9 is greater than 8/13. That means 7/9 is greater than 8/13. Understood everyone how to do the comparison between any two fractional number? फिर वो कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो, उसके लिए यही मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हो व्हेन यू सपोज यू नीड टू डू द कंपैरिजन ऑफ एनी टू फ्रैक्शन नंबर. से यस नो समझ में आया, नहीं आया? Yes, sir. Good. After that see the question number 2. उसमें हमने एक क्वेश्चन किया है, बाकी के सब आप अपने आप घर पे प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. It's okay, yeah. Let's get the revision of it. It's okay, beta. You might, if you have done with it, then let's get the revision of it. Okay, don't worry. That is, arrange the following fraction in ascending order. Okay. In which, let I'm going to do the second one, जो आरडी शर्मा से दिया हुआ है. That is 4/6, 3/8, 6/12 and 13/20. अब सबको पता है कि अगर हमें
फ्रैक्शनल नंबर को कंपेयर करना हो या तो फ्रैक्शनल नंबर का ऑर्डरिंग करना हो, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके लिए, तो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर होना चाहिए, यानी कि वो लाइक फ्रैक्शन के नंबर होने चाहिए। अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो हमें उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, और अगर किसी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में फ्रैक्शन करना, लाइक में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन बताएगा? LCM सर, LCM सर। ठीक है, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे एलसीएम यानी कि हमारे पास नंबर है 6, 8, 12 एंड 20, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा। ठीक है, अभी भी ये 2 से होगा, अभी ये 4 बार 2 से होगा, फिर 3 से होगा, और लास्ट में 7 से होगा। एलसीएम क्या होगा, इन सभी प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 2 जा 84, 84 2 जा 168 इज द एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकलने के बाद हम हर एक नंबर का डिनोमिनेटर सिमिलर करेंगे। जो 4/6 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/6 है तो इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 निकाल दो, 28 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ताकि इसका डिनोमिनेटर 168 हो जाएगा और न्यूमरेटर होगा 8 4 जा 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 2 जा 8 एंड 3 11। उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है 3/8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया 63/168। उसके बाद हमारे पास नंबर है 6/12, 6/12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 14 से करेंगे, 168। मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर बाय एलसीएम जी, 160। अब देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 112, 168, 84 अपॉन 168, 63 अपॉन 168, 78 अपॉन 168। नाउ हमें करना कौन सा अरेंजमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग। तो आफ्टर गेटिंग एलसीएम जो ये लाइक फ्रैक्शन आया है उसका हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग, विच वन इज स्मॉलर, 63/168, उसके बाद है 78/168, उसके बाद है 84/168 एंड आफ्टर दैट 112/168। सो ये जो हमने अरेंजमेंट किया वो तो किसका नंबर हुआ, तो क्यों, तो हमें जो एलसीएम निकालने के बाद लाइक फ्रैक्शन मिले वही हुए। अल्टीमेटली जो लाइक फ्रैक्शन उसके मिल रहे उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सिमिलर होती है। ठीक है, अगर आप कटिंग प्रोसेस करो तो सिमिलर ही आएगी। तो अब इसके साथ जो कंपैरिजन में नंबर थे, जैसे 63/168 का नंबर आएगा 3/8, 78 और इसका आएगा 13/28, 84 का आएगा 6/12 और इसका आएगा 4/6। तो दिस इज सपोज टू द अरेंजमेंट ऑफ एन असेंडिंग ऑर्डर, 3/8, 13/28, 6/12 एंड 4/6। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज एनी फ्रैक्शनल नंबर इन ऑर्डरिंग, फिर वो असेंडिंग पूछा हो या डिसेंडिंग। If it is ascending, then it is small to big. If it is descending, then it means big to small. Rest the things are similar. 3 स्टेप याद रखो। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, अगर डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकलने के बाद उस नंबर का डिनोमिनेटर उस एलसीएम जितना करो एंड आफ्टर दैट वो जो नंबर मिले उसको पहले अरेंज करो और आफ्टर दैट उसके रिलेवेंट जो नंबर है उसको अरेंज करो। देन यू गेट योर अरेंजमेंट ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शनल नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। You guys need to practice this very carefully. See, तुम्हें लगेगा कि मैथ का एग्जाम तो सर एमसीक्यूएस बेस्ड है,
बट मैंने अगर इसको पूछ लिया आपको तो आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है कि आपकी प्रेजेंटेशन ठीक ना हो तो चलेगा कि आप रफ वर्क में फटाफट कर लिए, एनी हाउ यू हैव टू डू द मैथोडोलॉजी। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ दिस नंबर, देन यू नीड टू चेक ना, 4 ऑप्शन को चेक करने के लिए यू नीड टू चेक दिस आंसर। समझ में आ रहा? यस सर। मुझे लगता है क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, लिखा तो 20 रहा है। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हमने 2 कंसेप्ट रिवाइज किए। वैसे देखो तो 3 कंसेप्ट, डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ द फ्रैक्शन। लेट दिस नोट इट डाउन इन योर सेकेंड FNB, जो आपका दूसरा बुक होगा RD शर्मा का। इसमें आप ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन करोगे। उसके सिवा के जितने भी रिमेन क्वेश्चन हैं इन दोनों में वो आप होमवर्क में करोगे, यानी कि क्वेश्चन 1 and 2 यू नीड टू कंप्लीट फ्रॉम RD शर्मा। हम सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे बट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन 1 and 2 यू नीड टू डू। क्लियर एवरीवन? सर आई हैड डन दिस होल चैप्टर। दैट्स ग्रेट। अगर आप पूरा चैप्टर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस आर द थिंग जो रिवीजन पार्ट में करवाया जाता है वो मिनिमम इतना तो करना ही करना। इट इज ऑलवेज गुड। अगर आप पूरी बुक सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट है बाद में मुझे पूछना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बट यहाँ जितना मैं करवा रहा हूँ उतना तो आपको कंपल्सरीली करना है, ठीक है? चलो, जिसने नहीं लिखा था लेट नोट मेक श्योर आप दूसरी नोटबुक में लिखोगे। मैथ्स की जहाँ NCERT के सॉल्यूशन है उस बुक में नहीं लिखोगे। ये जो आप लिखोगे वो कौन सी बुक में लिखोगे? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम RD शर्मा के सॉल्यूशन के लिए एक अलग बुक बना रहे हैं, उस बुक में लिखोगे, ठीक है? जी पूछिए। इसमें वो असेंडिंग में सही होता है ना कि वो जो LCM आया और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आता है। तो जैसे कि 20 तो ऊपर भी 20 हो तो नीचे भी 20 कैसा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये सारा एडिशन में भी अप्लाई होता है बेटा। लाइक टर्म बनाने के लिए एडिशन में भी वही अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन में भी वही अप्लाई होगा, ठीक है? Once you're done with the class, so please put the message in the chat box so that it is there. फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको RD शर्मा वाली बुक इस बार सबमिट नहीं करनी है, इस बार ही सबमिट नहीं करनी है। शायद अगर मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने होंगे रिवीजन के लिए तो मैं जब आपका सबमिशन हो तब ले सकूं, उसलिए सबमिट नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक भी बार सबमिट नहीं करनी होगी। नेक्स्ट जब टर्म 1 का सबमिशन आएगा यू मस्ट हैव टू सबमिट द सॉल्यूशन ऑफ द RD शर्मा जो हमने क्लास वर्क में किया है, उतना तो आपको एनी हाउ सबमिट करना ही है। तो प्लीज मेंटेन दिस नोटबुक ऑल्सो एज वेल द वे यू मेंटेन NCERT FNB। Done everyone? Done, sir. For my remaining. Okay, let's complete it and then let's see. जिसका पहले से हो चुका है, please wait.
PWW सर। ओके गुड, चलो तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आरडी शर्मा से कंप्लीटली नोटबुक में करना है, ठीक है। अब सीधा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, if you wish to do it, you can do it. It's not an compulsory part, but for practice अगर आप कर लो तो अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। That is about to find the addition, यानी कि हमें यहाँ पे एडिशन के सम करने हैं। तो इसमें मैं आपको लास्ट वाला 4th वन सम करवाता हूँ, तो आगे के 3 सम आसान है जो आप कर सको। It is complete in a mixed fraction, 2 whole 3/5 plus 4 whole 7/10 plus 2 whole 4/50। सबसे पहले अगर तुम्हें एडिशन करने को बोला और आपका नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। हाउ टू डू द कन्वर्जन ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? Yes, please. 2 whole 3/5 का कन्वर्जन क्या होगा इम्प्रॉपर में? Sir, first we have to multiply 5 and 2 Sir, and then plus 3, 5 and 2 and then plus 13/5, 13/5. ठीक है, this is to be multiplied 5 2s are 10, which is add with the numerator 13, that becomes By 13/5 plus the 10 4s are 40 plus 7 47/10. 15 2s are 30 plus 4 34/15. 15. After that, once you get your conversion of mixed fraction number into improper fraction, second thing you are going to observe that is the numerator or denominator of the given numbers. Here the 5, 10 and 15. That means it is unlike fractional number. Then what you need to do, you have to convert this in like fractional number. और like fractional number में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to take LCM of denominator. That's a 5, 10 and 15 का अगर हम LCM लेते तो 2, 5, 5, 15, 3, 5, 5, 5 and then 5, 1, 1, 1. So what you get at LCM? 2 multiply 3 multiply 5 is 30. अब क्या करेंगे हम? तो क्या हम 1/1, देखो ये हमारा जो नंबर है 13/5 प्लस 47/10 प्लस 34/15। 5 को 30 करना हो तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? हमें डिनोमिनेटर 30 करना होता है ना, एलसीएम जितना। 6 सर। तो इसको करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई बाय 6। 10 को 30 करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 और 15 को 30 करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 2। बट ये जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर हमने जो नीचे डिनोटेड किया है वो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ नहीं होगा। टू मेक इट बैलेंस, टू मेक इट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें उसको न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 6 78, 5 6 30, 47 3 I think 141 and 34 2 68, 15 2 30। ठीक है, आप क्या करोगे? नाउ यू गेट द लास्ट फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर का 38 इज 78 प्लस 141 प्लस 68, न्यूमरेटर के सारे नंबर का एडिशन 8 1 9 9 8 17, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 1 7 7 4 11 11 7 18, 1 carry forward 1 1 287 upon 30. Whenever you get your answer as improper fraction, what you need to do, you have to convert this answer in a mixed fraction. And how to convert this number as a mixed fraction? Then 287 divided by 30, 30
9 जा 270 710, तो 30 आएगा यहाँ पे नीचे, 70 जाता है रिमाइंडर ऊपर और कॉन्स्टेंट आ जाता है एज अ होल नंबर। तो इसका आंसर होगा 9 होल 17/30। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो तो उसका एडिशन का यही प्रोसीजर है। अगर आपको पहले से ही लाइक फ्रैक्शन दिया हो देन यू डोंट नीड टू डू दिस प्रोसेस, एलसीएम वो सब नहीं लेना पड़ता है, सीधा 3 स्टेप में इतना ही होता है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो ये पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती है। ठीक है, तो लेट्स फिनिश इट एज एन क्लास वर्क, और क्वेश्चन 5 के जितने भी रिमेन क्वेश्चन है 1 2 3 वो आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे जहां डिफरेंस के क्वेश्चन है। डन सर। डन सर। ठीक है, CW डन सर। ओके बेटा, चलो किसी का बाकी रहा बेटा, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं हम। यस सर, मैं रिपीट। ओके, वंस यू फिनिश लेट मी नो। ओके, सर CW डन। these all questions can be asked as an MCQs. Okay, I simply ask about the find करके पूछ लिया होता है, ऑप्शन में दे देते हैं आंसर। ठीक है, now done everyone? डन सर। सर 1 मिनट। Is this Manav, that Manav Bauer वाला? CW डन सर। Okay, Rishika Uppan, Ravi Patel also present. Good. Now see the next concept to be learned. Question number 6 of exercise 2.1 from RD Sharma. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, उसमें भी मैं एक सम करता हूँ। लेट मी डू द फोर्थ वन। क्या दिया है? तो 3 होल 3/10 एंड 2 होल 7/15 का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो लिखा कैसे जाएगा? 3 होल 3/10 माइनस 2 होल 7/15। 10 3 जा 30 प्लस 3 33/10 माइनस 37/15। 10 एंड 15 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 5 जा 15, 3
5 5 5 1 1। एलसीएम क्या मिला हमें? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 30। अब क्या होगा? तो ये जो हमारा नंबर है 33/10 माइनस 37/15, इसको 30 करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 2 से, तो ये 99/30, ये 74/30। अब ये लाइक हो गया, तो 99 माइनस 74/30, देन यू गेट द आंसर 5 2। When you get your answer as an improper fraction, अगर आपको आंसर improper fraction में मिल रहा है, then it's your आंसर। इसको और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। बट अगर आपका आंसर ऐसा मिल रहा है कि जो फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, तो आप इसको और कटिंग कर सकते हैं, जैसे 5 6 सॉरी 5 5 एंड ये होगा 5 6 तो 5 5 कट एंड द फाइनल रिमेन आंसर इज 5/6, शॉर्टेस्ट फॉर्म। इन सम केसेस ये भी एक्सेप्टेबल होता है, बट अगर एमसीक्यू में ऑप्शन में ये नहीं है और 5/6 दिया है, देन यू नीड टू सी फॉर दैट, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मेथड सिमिलर होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में 3 ही स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले नंबर का न्यूमरेटर देखो, अगर लाइक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा एडिशन कर दो। अनलाइक है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद नंबर का न्यूमरेटर एलसीएम जितना करो, डिनोमिनेटर जितना करो, और जब एलसीएम मिल जाए तो उसका एडिशन कर दो, या तो माइनस है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 4th मैंने करवाया, आगे के तीनों के क्वेश्चन नंबर 6 से सिर्फ 4th मैंने करवाया, ठीक है। आगे के दिन आप होमवर्क में अपने आप कंप्लीट करोगे। कि अब तक हमने 2.1 में से क्वेश्चन 1 2 5 एंड 6 कंप्लीट किया, वो पूरा का पूरा आपको आरडी शर्मा की जो नोटबुक है उसमें कम्प्लीटली लिखना है, ठीक है, सॉल्व करना है। उसमें अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। अभी इसको क्लास वर्क में लिख लो बेटा। और अब तक हमने आधा फ्रैक्शन रिवाइज कर लिया है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। अब सिर्फ और सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन रिवाइज करना बाकी है। डन सर। ओके बेटा। सर हाँ बेटा। CW डन। उसके बाद देखो आरडी शर्मा में जो क्वेश्चन 7 और 8 दिया है सॉरी, वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रिलेवेंट और सिंप्लीफिकेशन के रिलेवेंट ही है, ठीक है। तो अगर वो आप चाहो तो एज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? What should be added to, वैसे होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही,
हमें 5 होल 3/7 में क्या ऐड करना चाहिए? हमें 5 होल 3/7 में सपोज x ऐड करते और 12 मिलता है, तो ट्रांसपोजिंग करो, हमें x कैसे मिलेगा? तो कि 12 माइनस 5 होल 3/7, मतलब हमें ढूंढना क्या है? 12 माइनस 5 होल 3/7 ही तो ढूंढना है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 लगा दो, फिर 12/1, 7 5 35 प्लस 3 38/7, 1 एंड 7 है। जब दो प्राइम नंबर या तो 1 के साथ कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में हो तो एलसीएम तो वही का वही नंबर आता है। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा पता चलेगा 7। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 है तो 1 लिख दो। 12 7 84/7 माइनस 38/7, फिर 84 माइनस 38/7 क्या मिलेगा? 46/7। जब आंसर इम्प्रॉपर में आए तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और वर्ड प्रॉब्लम हो तो मेरे में आंसर भी लिखना है। तो वी शुड ऐड 6 होल 3/7 to 5 होल 3/7 to get 12, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी किए थे, इस तरह के क्वेश्चन हमने डेसिमल में भी करेंगे और किए थे। इस तरह के क्वेश्चन हर चैप्टर में आता है। What should be added and what should be subtracted depend on the number we had it, ठीक है। Understood everyone? यस सर। चलो इसको लिखो, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। डन सर। डन सर। ओके बाकी Done everyone? यस सर डन। विश्वा आपका पहले से कंप्लीट है बेटा, तो लिख रहे उसको पूछेंगे।
कोई बात नहीं बेटे। Now done classwork everyone? Okay, the question number 10 is 7. तो आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है? What should be added to this to get 12 whole 3 by 5? उसके बाद देखो 11th one क्या है? This woman studies for 5 whole 2 by 3 hours daily. And she devoted 2 whole 4 by 5 hours to her time for science and mathematics. How much time does she devoted for other subjects? देखो क्या दिया है, सुमन स्टडीज फॉर 5 whole 2 by 3 hours daily. हर रोज का उतना पढ़ाई करता है वो, ठीक है? उसमें से 2 whole 4 by 5 hours तो सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाई करता है, तो बाकी के सब्जेक्ट के लिए उसने कितना टाइम दिया होगा? What we need to do in this? Subtraction. Very good. ठीक है, तो 11th वन भी आप अपने आप होमवर्क में करोगे ना। उसके बाद 12th वन देखो, a piece of wire is the length of 12 whole 3 by 4 meter. If it is cut into the 2 pieces in such way that the length of one piece is 5 whole 1 by 4 meter, what is the length of other piece? सिंपल क्वेश्चन है, समझो। अगर आपके पास 10 मीटर का वायर है, आपने उसके 2 पार्ट बनाए, तो एक 7 मीटर का है तो दूसरा कितने मीटर का होगा? If you had a one wire, the length of the wire is a 10 meter. If you cut it in a 2 part, one is a 7 meter, then what will be the length of the other part? 3 meter. है ना? You get it simply 10 minus 7 is equal to 3. Okay, so same thing you have to do. Same thing you have to do here in the 12th one. The piece of wire is length of 12 whole 3 by 4 meter. You have to cut it in a 2 piece. इसमें से एक होगा 5 whole 1 by 4 meter का, तो दूसरा कितना होगा? You will just subtract it. Guys, is audible and visible everyone? Yes, sir. Yes, sir, clearly. Okay, beta. Harsh, please see to your network issues, beta. I think it's from your side. ठीक है, उसके बाद 13th वन देखो, a rectangle sheet of paper is 12 whole 1 by 2 centimeter long and 10 whole 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. तो perimeter of rectangle क्या होता है? 2 bracket length plus breadth. Length and breadth दिया है, तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन का एडिशन ही है। एडिशन करने के बाद जो नंबर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ नहीं है, ठीक है? दैट ऑल्सो यू हैव टू कंप्लीट एज एन होमवर्क। 14th वन करने की जरूरत नहीं है। 15th वन अगर आपको प्रैक्टिस करना देन यू कैन, और कोई इश्यूज नहीं है, जरूरत नहीं है। 16th वन भी इट्स लाइक एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है, जो है उसी का क्वेश्चन है, तो वो भी आपसे हो जाएगा, नहीं करो तो चलेगा। सो नाउ टुडे व्हाट वी हैड कंप्लीटेड, रिवीजन में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बाद हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन किया, यानी कि ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन किया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन एंड फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर रिवाइज हो चुका है। हाफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पार्ट, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ लिसन, इट इज कंपल्सरी टू कंप्लीट exercises 2.1, question 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 and 13 in your RD Sharma FNB. मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, इट इज कंपल्सरी टू कंप्लीट exercises 2.1 from the RD Sharma. In the book of RD Sharma, that is question number 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 12 and 13. इसके सिवा के जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो, बट कंपल्सरी में नहीं आता है, ठीक है? वेदांत बेटा, सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्यों आते हो? व्हाई डोंट यू जॉइन द क्लास फ्रॉम द बिगनिंग? एंड आई एम नॉट गोइंग टू पुट योर मार्क्स टू अटेंडेंस एनीवे। ठीक है, चलो, रेस्ट ऑफ यू गाइस गिव योर अटेंडेंस in the chat box only. Guys, make sure you give your attendance in the chat box only.
प्रियांशु आद्रोजा, अया नंदानी, देव भद्रकिया, मानव बावरवा, राम्य चौकसी, रुसिल, युग देत्रोजा, ध्रुव जेठलोजा, सोहम जिलरिया, आद्या कचोरिया, राधे, हर्ष, ईश्वा, खुशी, दर्शिता, रवि कुमार, वेदांत, साइना पाठक, नंदन चौसानी, प्राप्ति ठोरिया, ऋषिका उकानी, सुहानी विरंगाम। ओके guys, चलो bye bye everyone, see you all in the next class. Till then, take care, stay safe, bye everyone.